Hello friends, welcome to your own channel Botany by Dr. Jaswinder Kaur. In the last video, I have discussed 60 MCQs of series 600 most expected ecology and environment questions. These questions are very important for all the competitive exams like TGT, PGT, college lecturer, assistant professor, all state PCS, scientist B recruitment, NET JRF exams, all MSc entrance exams. सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to hit the bell icon so that whenever I upload any video you will instantly get the notification. Without wasting time, let's start. This is part 2 of environment and ecology MCQs. During the past 150 years, the carbon dioxide content in our atmosphere has increased approximately between 270 to 340 ppm. This is the correct answer. Organisms which usually live as parasite but can grow saprophytically in the absence of host plant are called as facultative saprophytes. ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वैसे तो पैरासाइट्स होते हैं बट अगर इन्हें होस्ट नहीं मिलता है, इस तरह की कंडीशन इनके सामने आती है तो ये सैप्रोफिटिकली सब भी ग्रो कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स. मतलब फैसिलिटी अगर मिले तो ये सैप्रोफाइट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. Atmospheric ozone layer which protect from ultraviolet rays is getting depleted most by the addition of, जो हमारी ओजोन लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, उसको डिप्लीट कर रहे हैं CFCs और CFCs are also called as chlorofluorocarbons. So this is the correct answer. Which one of the following statements is appropriate for the red data book? हमें ये appropriate statement बतानी है in concern with red data book. It is a list of plants and animals present in Red Sea. No, it's not. It is a list of red pigmented plants. No. It provides data on the effects of red light on photosynthesis. It is also incorrect. It provides data on species threatened with extinction. ये जो है सही statement है in relation to red data book क्योंकि उसमें threatened species का ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है जिनको कि थ्रेट है of extinction. Bronchious life form, the hydrophytes are. अब ब्रोंकियर लाइफ फॉर्म में हाइड्रोफाइट्स हैं, वो किस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं? दे वर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स जो हैं उसमें रेस्टिंग बर्ड्स जो हैं वो सबमर्ज होती हैं अंडर वाटर, सो दे आर क्लासिफाइड अंडर क्रिप्टोफाइट्स. Which of the following is an endemic plant? अब इसमें से हमें एंडेमिक प्लांट बताना है निपेंथिस खासियाना, जो हमें मेघालय में मिलता है. इट इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड यही है एंडेमिक टू मेघालय. सो एंडेमिक प्लांट इन द लिस्ट इज निपेंथिस खासियाना. प्रेजेंटली द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, जो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, इतनी गर्मी होने का, दैट इज द इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इंक्रीजिंग carbon dioxide concentration is the right answer. Greenhouse effect with respect to global climate refers to, greenhouse effect हम कहते हैं जो warming effect है उसी को हम greenhouse effect भी कहते हैं. So option B is correct. Best stratification of trees is found in tropical rainforest. बेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन हमें ट्रीज़ की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है क्योंकि यहाँ पे हमें हर्ब्स भी मिलते हैं, श्रब्स, वाइन्स, लाइनाज, शॉर्ट ट्रीज, टॉल ट्रीज, सभी हमें इसी में मिलते हैं. अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज मिलती हैं. सो बेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अमंग द फॉलोइंग द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस फील्ड इज एजोला पिन्नाटा. एजोला पिन्नाटा इज अ फर्न स्पीशीज and it belongs to family Salviniaceae. An insecticide obtained from the leaves of neem is Azadi rachtin. Azadi rachtin जो है वो हमें नीम प्लांट से मिलती है and it is an insecticide. Which of the following is not a biofertilizer? तो Azotobacter is a biofertilizer. Frankia and Rhizobium, all these are biofertilizers. But जो Nitrobacter है that is not a biofertilizer. It is a chemoautotrophic bacteria.
और ये रोल प्ले करता है इन नाइट्रोजन साइकिल इन विच इट कन्वर्ट्स द नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स. सो आंसर इज नाइट्रोबैक्टर. एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक ऑर्किड. सैप्रोफिटिक ऑर्किड इनमें से है नियोशिया. बोटैनिकल जेनरिक नेम ऑफ ब्लैडर वॉर्ड. बोटैनिकल नेम बताना है जो जेनरिक नेम है ब्लैडर वॉर्ड का, दैट इज यूट्रिक्युलेरिया. दिस इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन होती है एक्सेस कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जब हो जाती है एटमोसफेयर में, उसकी वजह से. सो हाई SO2 लेवल इन एटमोसफेयर इज द राइट आंसर. The word ecosystem was first coined by. ecosystem word पहले किसने coin किया था? He was A.G. Tansley. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. यहाँ में दो लिस्ट दी गई हैं, ये प्लांट्स की कैटेगरीज दी गई हैं और यहाँ पे कुछ जेनरा के नाम दिए गए हैं. हमें मैच करना है कि ये प्लांट जेनरा किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट कैटेगरी में इनमें आता है ट्रापा, क्योंकि ये वाटर प्लांट है. सो हाइड्रोफाइट कैटेगरी में आएगा ट्रापा. एंड देन जीरोफाइट्स, जीरोफाइट में आएगा ओपोजिया. जियोफाइट्स, जियोफाइट में आएगा एलियम. एंड हेलोफाइट्स इसमें इस कैटेगरी में बिलोंग करता है राइजोफोरा. सो फ्रॉम दिस कोड्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following has the largest flower? Largest flower of the word is Rafflesia. This is the correct answer. A biodegradable pollutant. Pollutant है ये सारे के सारे, लेकिन उसमें से जो biodegradable pollutant है that is the municipal sewage. Nematophores are commonly found in. Nematophores आप जानते हैं respiratory roots हैं और ये halophytes में मिलती हैं. तो इन चारों में से Rhizophora mucronata is a halophyte. So nematophores are commonly found in Rhizophora mucronata. On unit area basis, the total productivity in sea as compared to land is it's half. जो सी की प्रोडक्टिविटी है अगर हम कंपेयर करें लैंड से तो वो प्रोडक्टिविटी है हाफ. दैट मीन्स लैंड की प्रोडक्टिविटी सी से डबल है. ट्रेसर एलिमेंट्स आर also called as radioisotope elements. The source of ATP for symbiotic nitrogen fixation in root nodule is, that is the pyruvate. Correct answer is pyruvate here. Subsoil water in certain alluvial areas of West Bengal is reported to suffer from the toxicity of. अब यहाँ पे सबसॉइल वाटर जो है वेस्ट बंगाल में, उसमें जो टॉक्सिसिटी हो किस वजह से? आर्सेनिक की वजह से. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी सलाइन हैबिटेट आर कॉल्ड एज मैनग्रोव्स. इसे हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन. हाइड्रोफाइट्स आप जानते हैं वाटर प्लांट्स को बोला जाता है, वाटर में है. तो इन जाइलम जो है एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है. जब वो ऑलरेडी वाटर में है तो उनको वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो ये जाइलम जो है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है इन हाइड्रोफाइट्स. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमिक स्टेज ऑफ ए सक्सेशन इज इक्वल्स टू कंजप्शन. जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्लाइमिक स्टेज पे आने के बाद इक्वल टू कंजप्शन हो जाती है. जितनी प्रोडक्टिविटी होती है उतनी ही कंजप्शन हो जाती है, एक बैलेंस फॉर्म हो जाता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंजूरियस टू प्लांट्स बिकॉज. इंजूरियस है बिकॉज इट कॉज द जेनेटिक चेंजेस. द मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम कुड बी द ओशंस. ओशंस को ही मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम माना जाता है. ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन ट्रीज आर. ऑर्किड प्लांट्स जो हैं ये भी प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं दूसरे प्लांट्स पे. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स. सो द ऑर्किड प्लांट्स दैट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स. एयर पॉल्यूटेंट गैसेज कॉजिंग एसिड रेन्स आर. अब एयर पॉल्यूटेंट गैसेज जो कि एसिड रेन कॉज करती है दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. सो और ये सल्फर डाइऑक्साइड. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. टोटल रूट
पैरासाइट। अब इसमें से टोटल रूट पैरासाइट बताना है, तो वैसे तो सारे ही पैरासाइट्स हैं लेकिन टोटल रूट पैरासाइट एग्जैक्टली पूछा गया है, तो दैट इज ओरोबैंकी। ये है टोटल रूट पैरासाइट, इट बिलोंग्स टू फैमिली ओरोबैंकेसी। ऑर्निथोफिली इज द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय बर्ड्स। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन किसे कहते हैं? दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजनस फूड रिजर्व्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ। नाइट्रोजन फूड रिजर्व्स जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सो ब्लू ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर। The greatest air pollution disaster during recent years had been witnessed in, that was in भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा, and it was due to methyl isocyanate gas, so correct answer is B. Soil texture wise water erosion is maximum in। वाटर इरोजन मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी सॉइल की, एंड दैट इज लेस इन सैंडी लूम सॉइल। सो वाटर इरोशन जो है इसमें होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है कि जब एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है, अगर एक ट्रॉपिक लेवल में आया तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाके उसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन हाई ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a true climax according to the monoclimax theory? monoclimax theory के according climatic climax जो है that is a true climax. So climatic climax is the correct answer, and this the monoclimax theory was given by Clements in 1916. The concept of energy flow in an ecosystem was for the first time propounded by लैंडमैन। ये जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, ये दिया गया था लैंडमैन के थ्रू। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल इको टाइप? सीजनल इको टाइप जो है इसमें से है दैट इज केसिया सेमिया। निपेंथिस खासियाना, ए रेयर एंड एंडेंजर्ड पिचर प्लांट अकर्स इन इंडिया। आप जानते हैं निपेंथिस खासियाना जो रेयर भी है, एंडेंजर्ड भी है, और साथ में ये एक insectivore plant है, and it occurs in India in region of Meghalaya. The pyramid of number in tree ecosystem, जो pyramid of number है in tree ecosystem that is always inverted, is the correct answer. Primary productivity is maximum in tropical rain forest। जो primary productivity है वो maximum होती है in tropical rain forest. This is the correct answer. Plants of a community investing greater energy towards the vegetative parts are called as। जो ऐसी प्लांट कम्युनिटीज़ हैं जो अपने ग्रेटर एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट कर देती हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज आर स्ट्रेटेजिस्ट। और जो प्लांट कम्युनिटीज़ अपनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं टूवर्ड्स देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज K strategist. So according to this question, R strategist is the right answer. Ecotone is a, ecotone क्या होता है? एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज। दो डिफरेंट टाइप की प्लांट कम्युनिटीज हैं, उसके बीच में जो जोन होता है दैट इज नोन एज इकोटोन। सो द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज इकोटोन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो किया जाता है सीवेज का, उसमें क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन किया जाता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है टू बायोलॉजिकली डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाय, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये कॉइन की गई थी बाय W.G. Rosen. This is the correct answer. Which of the following is a detritus food chain? Detritus food chain जो है वो होती है that start with the dead organic matter and it goes to the detritus feeding organism. So ये जब ट्री हैं, ये ट्री पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, ये जब डेड हो जाएंगी तो
इसके ऊपर फीड कौन करेगा? इंसेक्ट लार्वे, और इंसेक्ट लार्वा जब डेड होंगे, इंसेक्ट लार्वा पे फीड करेंगे बीटल्स, एंड ऑन बीटल्स अर्थवर्म विल feed. So this is the last detritus feeding organism in this food chain. So this is the detritus food chain from the given options. The total energy fixed by a green plant of an ecosystem on a whole is called, जो टोटल एनर्जी होती है ग्रीन प्लांट्स फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. The pyramid of numbers of a parasitic food chain in a forest ecosystem is always inverted. जो parasitic food chains होती हैं वो always inverted होती हैं. Climate community shows, जो climate community होती है या climax community होती है, that shows a balance P by R ratio, that is जितना उसमें production होता है उतना ही respiration ratio भी होता है. So दोनों ये balanced amount में होते हैं. Which of the following organism does not fix atmospheric nitrogen? इनमें से Nostoc, Azotobacter and Clostridium, all these fix atmospheric nitrogen, but Microcystis, it does not fix the atmospheric nitrogen. So this is the correct answer of this question. Microbes which require growth factors in addition to minerals, carbon and energy sources are known as, microbes बताने हैं जो कि जिनको मिनरल्स, कार्बन और एनर्जी सोर्सेज के अलावा ग्रोथ फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, दे आर कॉल्ड एज फास्टिडियस हेटेरोट्रॉफ्स. In plant succession, when the climate is reached, the net primary productivity, जब plant succession होता है, जब climax आ जाता है, climate reach हो जाता है, that is the climatic climax, तो net productivity जो होती है वो stable हो जाती है. So D is the correct answer. In stratosphere, bulk of ultraviolet rays are absorbed by ozone layer. Ozone act as a protective umbrella in the stratosphere and it absorbs bulk of the ultraviolet rays coming from the sun. Eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to, eutrophication किस वजह से होती है? excess amount of nitrates and phosphate जब water bodies में आते हैं उसकी वजह से algal blooms form होते हैं और जिनकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. सो डिफरेंट जितनी उसमें फिशेज़ हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो सब डाई होने लगते हैं, दैट इज़ तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. pyramid of biomass will be inverted in the ecosystem. अब pyramid of biomass जो है वो inverted किस ecosystem में होगा? That is in the pond ecosystem. In recycling of mineral elements within an ecosystem, the responsible direct acting organisms are called as decomposers. जो recycling में help करते हैं of minerals in an ecosystem, they are called as decomposers. An increase in the atmospheric level of automobile exhaust gases does not lead to, automobile की जो exhaust gases जो automobile से निकलती हैं उनके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होने की वजह से इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं होंगी? लेड पॉल्यूशन होगा, दिस इज़ करेक्ट. पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ये भी बढ़ेगा. ओजोन पॉल्यूशन होगा, बट यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन है, दैट कैन बी done by the automobile exhaust gases. So this is the answer of this question, ozone depletion. Among the following environmental pollutants which has the problem of biomagnification, इनमें से environmental pollutants दिए गए हैं, इसमें से जो मेजर कॉज है, जो कॉज करेगा प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, दैट इज़ एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, दैट इज़ द मर्करी फंजीसाइड्स. दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं. सो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा देखिए. एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है. आपके एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. Rest of the questions I will discuss in next video. Thanks for watching. Until next time, goodbye.